السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 محرم الحرام 1440 ہجری بمطابق 20 سپتمبر 2018 بروز جمعرات، سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اقامے کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ گورنمنٹ کے خزانے سے ادا کرنے کی مشروط منظوری۔ سعودی کابینہ نے حکومت کی طرف سے بقایا جات ادا نہ کرنے کی صورت میں غیر ملکی ملازمین کے اقاموں کی تجدید میں تاخیر پر عائد ہونے والا جرمانہ سرکاری خزانے سے ادا کرنے کی مشروط منظوری دے دی۔ یہ منظوری منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات ڈاکٹر عواد بن سہل العواد نے اجلاس کے بعد سعودی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ سعودی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کفیل کے بقایا جات کی ادائیگی میں سرکاری ادارے کی تاخیر پر غیر ملکی کارکن کے اقامے کی تجدید میں تاخیر ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے کفیل پر جرمانہ عائد ہو رہا ہو تو یہ جرمانہ سرکاری خزانے سے ادا کیا جائے گا، بشرطے کہ غیر ملکی کارکن اسی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہو جس کے بقایا جات حکومت کے ذمہ ہوں اور وہ ادا نہ کیے گئے ہوں۔ شاہ سلمان سے عمران خان کی ملاقات۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر اطلاعات فواد حسین، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر خان حشام بن صدیق موجود تھے۔ پاکستانی وزیر اعظم کی ایوان شاہی میں آمد کے موقع پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی وفد سے تعارف کرایا گیا۔ شاہ سلمان کا تعارف پاکستانی وفد کے اراکین سے کروایا گیا۔ 97% در انداز یمنی۔ سعودی سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ در اندازی یمن کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے در اندازی کی 29,000 سے زیادہ کوششوں کو ناکام بنا چکے ہیں۔ 97% در اندازوں کا تعلق یمن سے پایا گیا۔ 29,442 نے در اندازی کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام بنا دی گئی۔ ان میں 55% یمنی، 42% ایتھوپین اور 3% دیگر ممالک کے شہری پائے گئے۔ سعودی عرب سے در اندازی کرنے والوں کی تعداد 1,387 ریکارڈ کی گئی۔ تارکین کے پیسے بھیجنے پر شورا میں پھر بحث۔ مجلس شورا کے ایک عہدیدار نے واضح کیا کہ ارکان شورا اپنے آئندہ اجلاس میں غیر ملکیوں کے ترسیل زر پر فیس کی تجویز کا فیصلہ کریں گے۔ مجوزہ مسودے پر ووٹنگ ہوگی۔ عہدیدار نے عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شورا کی مالیاتی کمیٹی سفارش کر چکی ہے کہ تارکین وطن سے ترسیل زر پر فیس وصول کی جائے۔ مذکورہ کمیٹی آئندہ اجلاس میں بھی اپنا یہی نقطہ نظر دہرائے گی۔ دوسری جانب وزارت خزانہ کے نمائندے اور بعض ارکان شورا ماضی میں بھی ترسیل زر پر فیس کی تجویز کی مخالفت کر چکے ہیں۔ آئندہ اجلاس میں بھی ان سے اسی کی توقع کی جا رہی ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ اگر ارکان شورا نے ڈاکٹر حسام الانگری کی تجویز کردہ سفارش منظور کر لی تو ایسی صورت میں حتمی منظوری کے لیے ایوان شاہی سے رجوع کیا جائے گا، جہاں سے ملک و قوم کے مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلہ صادر ہوگا۔ اتوار کو یوم الوطنی کی چھٹی ہوگی۔ اتوار کو یوم الوطنی کی تعطیل ہوگی۔ وزارت سول سروس نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا 88واں یوم الوطنی کے موقع پر اتوار 13 محرم الحرام بمطابق 23 ستمبر کو تمام سرکاری اداروں میں تعطیل ہوگی۔ واضح رہے کہ پرائیویٹ ادارے بھی اپنے ملازمین کو یوم الوطنی کے موقع پر چھٹی دیتے ہیں۔ حاجیوں کے 50 ڈرائیور نشے کے عادی نکلے۔ مکہ مکرمہ میں نشہ کرنے والوں کے نگران مرکز نے حج و عمرہ بسوں کے 50 ڈرائیوروں کو سبکدوش کر دیا۔ حج موسم کے دوران
3070 बसों के ड्राइवरों के खून के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री में चेक किए गए थे। 50 ड्राइवर नशा का इस्तेमाल करने वाले निकले। उन्हें रिपोर्ट आने पर सुबकदोश कर दिया गया। हाजियों की बसों पर काम करने वाले हर ड्राइवर के खून का नमूना लेकर टेस्ट किया जाता है। अल शर्किया सेहत के लिए गैर मुल्कियों का पसंदीदा रीजन। मौसम गर्मा के दौरान मुकीम गैर मुल्की सबसे ज्यादा मशरकी रीजन की सेहत के लिए पहुंचे। अल शर्किया सेहत के लिए आने वालों में मुकीम गैर मुल्कियों का तनासब 45% रिकॉर्ड किया गया। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये इतला देते हुए वादे किया कि मुकीम गैर मुल्की सबसे ज्यादा अल शर्किया में 45%, दूसरे नंबर पर रियाज 27% और तीसरे नंबर पर मक्का मुकरमा 16% सेहत के लिए पहुंचे। मरकज सेहत ने दीनी अगराज से किए जाने वाले असफार को सैरो सफात के दायरे से खारिज रखा। चोरी के मोबाइल फरोख्त करने वाले पकड़े गए। जद्दा पुलिस ने मसरूका मोबाइल के सौदे करने वाले दुकानदारों से पूछगछ शुरू कर दी। जामिया मोहल्ले में कई दुकानों पर चोरी शुदा मोबाइल के सौदे हो रहे थे, जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया। अल मदीना अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका एक हिस्सा मोबाइल चोरी की वारदातें कर रहा था, जबकि दूसरा गिरोह मसरूका मोबाइल फरोख्त करने पर मामूर था। 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 22 की निशानदेही कर ली गई। उन सब की गिरफ्तारी और गिरोह के मुमकिना दीगर अफराद की तलाश का सिलसिला जारी है। एक वारदाती का ताल्लुक अफ्रीका से है। कार्रवाई गैर मुल्की कारकुन की रिपोर्ट पर की गई। खवातीन के लिए ड्राइविंग के नए स्कूल। महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने वाजे किया कि खवातीन को ड्राइविंग सिखाने वाले नए स्कूल कायम करके उम्मीदवार खवातीन का रश खत्म कर दिया जाएगा। अल बसामी ने अकाज अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन को ड्राइविंग सिखाने वाले नए स्कूल जल्द खोले जाएंगे। हमारा मकसद सऊदी अरब में ट्रैफिक के निज़ाम को तरक्की याफ्ता मुमालिक के हमपल्ला बनाना है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि हसीर, तबूक और जद्दा में ट्रैफिक सलामती के नए प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। ड्राइविंग सिखाने वाले हर स्कूल में मुकम्मल मुतहर्रक ट्रैफिक करिया भी कायम किया जाएगा। नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल और सानवी स्कूलों के तलबा को ट्रैफिक पैगामात के जरिए वसीउल बुनियाद तरबियती कोर्स कराए जाएंगे। इमरान खान की OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल उसैमीन से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुगा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर हशाम बिन सदीक मुलाकात के दौरान मौजूद थे। इमरान खान से वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वली-ए-अहद और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात की। जद्दा में होने वाली मुलाकात के दौरान वली-ए-अहद ने इमरान खान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया और खित्ते को दरपेश सूरत हाल पर गुफ्तगू की। एक साल में सऊदियों के लिए अमेरिका के 78,000 वीजे। अमेरिका के मुआवन वजीर खारजा बराए कौंसल अमूर गॉल रिच ने बताया है कि अक्टूबर 2016 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक अमेरिकी सफारतखानों ने सऊदियों को 77,910 वीजे जारी किए। ये वीजे सऊदी तलबा और आर्जी रोजगार हासिल करने वालों को दिए गए। सियाहती वीजे इसमें शामिल नहीं। रियाद, जद्दा और जहरान में अमेरिकी कौंसल खानों और सफारत खानों ने तमाम ममालिक के बाशिंदों को 1,60,933 वीजे जारी किए। इनमें 70% वीजे सऊदियों ने लिए। ताउन के बायस 17 ममालिक के सफर पर पाबंदी। सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम ने मुहलिक मर्ज ताउन की वबा के बायस मजीद 10 ममालिक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान, इराक, यमन, शाम, इसराइल, कतर और थाईलैंड में ताउन की वबा फैली हुई है। इससे पहले 10 ममालिक के नाम जारी किए गए थे जहां ताउन की वबा फैली हुई थी। सऊदी हुकूमत ने ताउन के बायस 17 ममालिक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। मकामी शहरियों से कहा गया है कि वो मज़कूरा ममालिक का सफर बिल्कुल ना करें। 3 वजारतों को रोजाना ऑनलाइन 805 शिकायत। सऊदी अरब की 3 वजारतों को हर रोज ऑनलाइन 805 शिकायत मौसूल हो रही हैं। वजारत सेहत सरे फहरिस्त है जिसे 600 शिकायत मिल रही हैं।
वजारत ट्रांसपोर्ट को 50 और वजारत बल्दियात व दही अमूर को 155 शिकायत मौसूल हुई। सऊदी अरब ई गवर्नमेंट प्रोग्राम को मकबूल आम बनाने के लिए ऑनलाइन शिकायत के प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। कंपनियों के झांसों में न आए, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से मुनाफा बख्श स्कीमों के लिए सरमाया जमा करने वाली कंपनियों ने सब्ज बाग दिखाने वाली रिपोर्टें वेबसाइट पर जारी करना शुरू कर दी। ये कंपनियां मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों को ऐसे किस्से और ऐसी कहानियां पेश कर रही हैं जिन्हें पढ़कर गुमान होता है कि सरमाया लगाने वाले रातों रात अमीर हो गए। ये कंपनियां इंटरनेट पर इश्तिहारी एजेंसियों की मदद से इश्तिहारात दे रहे हैं। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की खिदमात हासिल करके लोगों को धोखा दे रहे हैं ताकि उनकी जेबें ढीली कर सकें। मकामी ओहदेदारों ने इस किस्म की कंपनियों के झांसे में न आने का मशवरा दिया है। एक कानूनी मुशीर खालिद अल खवादी ने मक्का अखबार से गुफ्तगू में कहा कि फर्जी कंपनियों की करता धरता शख्सियात का पता लगाना और उनका कानूनी ताक़ब करना बहुत मुश्किल है। जद्दा में गैर कानूनी डेंटल क्लिनिक। जद्दा पुलिस ने शहर के जनूब मशरकी मक्का रोड 14 किलो पर बगैर इजाजतनामे के डेंटल क्लिनिक चलाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि 5 गैर मुल्की डेंटल क्लिनिक चला रहे थे। ये सब के सब जाली डॉक्टर थे। इनमें एक खातून भी थी। इनमें से किसी के पास भी डिग्री नहीं थी। किसी भी इदारे से डेंटल क्लिनिक खोलने का इजाजतनामा हासिल नहीं किया था। पुलिस उनसे पूछगछ मुकम्मल करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर देगी। 2017 के दौरान 11,000 दावे। बाखबर जराए ने तखमीना जाहिर किया है कि 2017 के दौरान प्राइमरी लेबर बोर्ड को मुलाजमीन की जानब से 11,000 रिपोर्टें मौसूल हुई। सबसे ज्यादा गैर मुल्कियों ने दावे दायर किए। इनका तनासब 57.40% है। सऊदी मुलाजमीन के मुकदमात का मजमूई तनासब 43% है। वजारत इंसाफ और आला अदालती कौंसिल ने माह रबीउल अव्वल के शुरू में लेबर कोर्ट्स के इफ्तिताह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। लेबर कोर्ट्स के शुरू होने पर मुकदमात तेजी से निमटने लगेंगे। तारकीन के तरसीले ज़र में 7% कमी। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी के गवर्नर डॉक्टर अहमद अल खलीफी ने वाजे किया कि आखिरी 2 सालों के दौरान तारकीन के तरसीले ज़र में 7% कमी रिकॉर्ड की गई। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि 2018 की दूसरी सहमाही में 71 अरब रियाल बजट से फाजिल बचेंगे। अल खलीफी ने बताया कि तरसीले ज़र में कमी का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहेगा, अलबत्ता बहुत ज्यादा कमी मुतवक्के नहीं। कमी का दारोमदार गैर मुल्कियों के कयाम पर है। अगर ज्यादा तादाद में गैर मुल्की सऊदी अरब से रुखसत हो गए तो ऐसी हालत में तरसीले ज़र में खुद ब खुद कमी वाक़ई होगी। आज तक के लिए इतना है। ये था 20 सितंबर 2018 सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का